اس بارے میں میڈیا ممبر کہ ان لڑکوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ان میں سے 50 ہیں، اب غالباً اگر غلط ہوں تو 50 سے زیادہ لڑکے ہیں، اس میں فیمیلز بھی 2 کو یا شاید 3 کو پکڑا تھا جو نقل کے اندر ملوث تھے، ان کو پکڑا گیا ہے۔ اور آج کل کے نقل کی تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جدید طریقہ کار ہے، وہ ہیڈ فونز بھی استعمال کر سکتے ہیں، موبائل بھی ہیں، اور ان کے پاس واچز بھی ہیں، وہ لڑکے کو پتا ہوتا ہے کہ ہر کس طرح سے۔ مگر بات یہ ہے کہ بے ضابطگی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہمارا ایک ہی ہے، بلوچستان کو اپنا صوبائی میڈیکل کمیشن ملنا چاہیے۔ 22 ستمبر 2024 کو ہم لوگوں نے MD-KT ٹیسٹ دیا گیا تھا۔ اس MD-KT ٹیسٹ میں سب سے پہلے ٹیسٹ دینے کا ٹائم 8 بجے کی تھا، اور جب ہم لوگوں نے ٹیسٹ سینٹر گئے تھے، وہاں انٹر ہوئے تھے 8 بجے، ہمیں تقریباً 3 گھنٹے اپنے سینٹر میں بٹایا گیا تھا۔ 3 گھنٹے ہمارے ٹیسٹ نہیں تھے، اور یہ سارے اسٹوڈنٹ ڈپریشن کے شکار تھے۔ وہاں کوئی سہولت بھی موجود نہ تھی، نہ باتھ روم تھا، نہ ٹھنڈا پانی تھا، حتیٰ کہ میرے سینٹر میں جہاں میں بیٹھا تھا وہاں 2 گھنٹے پانی نہیں، اور مجھے وہاں 3 گھنٹے ایک ٹیسٹ دینے کے لیے انتظار کروایا گیا۔ بلکہ یہ ٹیسٹ آل پاکستان میں ایک ساتھ شروع ہونا تھا، تمام پروسیس میں ہو رہا تھا، لیکن تمام پروسیس کے ٹیسٹ اپنے ٹائم پہ شروع ہوا۔ میرا جو اپنا ٹیسٹ تھا میرا 12:30 پہ شروع ہو گیا، اور یہ ٹیسٹ جب شروع ہوا تو ہم لوگوں نے اسٹارٹ لے لی اپنے ٹیسٹ تحریک کی، ہم لوگ اپنے ٹیسٹ بیٹھے گئے تھے، ایک اچھے ٹیسٹ دینے گئے تھے، ہم لوگ ایک ڈاکٹر بننے گئے تھے کہ ہم لوگ ایک ڈاکٹر بنیں گے انشاءاللہ، اور بلکہ اپنی فیملی کی، پوری خاندان کی، پوری فیملی کی ہم لوگوں نے ایک ہوپ لیا تھا کہ ہم لوگ ڈاکٹر بن کے آئیں گے۔ تو میری وائٹ کی تھی سب سے، جب میں نے ٹیسٹ شروع کیا تو میرا سٹارٹ ہوا بایولوجی سے۔ بایولوجی میں کرتا رہا، آسان تھا، مگر ان کے درمیان جو MCQs آ رہے تھے انہوں نے ہمیں سلیبس دیا گیا تھا، ہمیں لمیٹیشن دیا گیا تھا کہ اس سلیبس کے مطابق آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہے۔ تیاری کرتے ہم لوگ کرتے گئے، سوال کرتے گئے، لیکن کرتے میرے تقریباً 16 MCQs صرف اور صرف بایولوجی کے آؤٹ آف کورس تھے۔ 16 ایک وہ تھا جو چیپٹر وہ دیا تھا اس ٹاپک آؤٹ نہیں، سلیبس میں چیپٹر موجود ہی نہیں تھا، اور وہ سب کہاں سے آئے تھے؟ فنجائی، پروٹسٹا، DNA، ایجنگ، سب سے آ گئے، جو کہ سلیبس کا حصہ تھا ہی نہیں۔ 16 MCQs تھے۔ اس کے بعد کیمسٹری پورشن آیا۔ کیمسٹری جب میں گیا تھا کیمسٹری کے پورشن پہ، تو وہاں بھی ٹیسٹ جب میں نے دیکھا تھا وہاں بھی 2 سے 3 MCQs آؤٹ آف کورس آئے تھے۔ کرتا جائے فزکس آیا، انگلش آیا، حتیٰ کہ یعنی میرے ٹوٹل ٹیسٹ پیپر 200 MCQs پر شامل تھا، لیکن 200 میں سے میرا 22 MCQs آؤٹ آف سلیبس تھا۔ جب 200 سے 22 نکالو گے تو میرا مقابلہ میرے ڈسٹرکٹ والوں سے جو باہر گئے تھے ان کا 200 MCQs تھا، یعنی میں نے اپنا ٹیسٹ 178 MCQs میں ان لوگوں سے مقابلہ کیا گیا۔ جب میں نے وہاں گیا، جب یہ ٹیسٹ کیا تو یہ سارے آؤٹ آف سلیبس آ گئے۔ خیر، پھر ہم لوگوں نے کل فارم جمع کیے تھے، ہم لوگوں نے فارم دیا گیا تھا، اسلام آباد والوں کا بھی آؤٹ آف کورس تھا، تو یہاں زیادہ تر اسٹوڈنٹ 70% اسٹوڈنٹ اپنی بلوچستان کی، اپنے BUMHS کی نااہلی کی وجہ سے 70% اسٹوڈنٹ اسلام آباد، پنجاب، سندھ گئے تھے۔ یہاں ہم لوگ تقریباً 1000 میل تھے، اور جو فیمیل تھے جو ان کو بائک زیادہ تھے وہ 4000 میل تھے، فیمیل تھے۔ پچھلے سال بھی میں نے ٹیسٹ دیا تھا، وہاں ٹوٹل تعداد 9800 تھا یا 9900 تھا، اس سال 5000 تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں جو ٹیسٹ بنتے ہیں آؤٹ آف کورس آتے ہیں، اپنے ٹائم پہ شروع نہیں کرتے ہیں، اور ناجائز کے اوپر ناجائز کرتے ہیں۔ اب اسلام آباد والوں نے احتجاج کیا گیا تھا، اسلام آباد والوں کو 6 مارکس مل گئے، بلکہ اسلام آباد والوں کو 6 مارکس نہیں ملے، میرے ڈسٹرکٹ والوں کو 6 مارکس مل گئے۔ یعنی جو میرے ساتھ مقابلے میں تھے، جو میرے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا، اس کو 6 مارکس آلریڈی مل گئے، UHS والوں نے دے دیا، لیکن بلوچستان والے ہمارے ایک اسٹیپ نہیں لیتے۔ ہم لوگوں نے فارم جمع کیا تھا، دوسری اسٹیپ جو ہم لوگوں نے لی تھی وہ دوسری اسٹیپ یہ ہے کہ ہم لوگ نے پریس کانفرنس کیا، تو لہٰذا ہماری ان باتوں کو ذرا غور کیا جائے اور ان باتوں کو دیکھا جائے کہ یہ کیوں اس طرح ہوتا ہے۔ اور ہمارے جو کیز تھے بلو، وائٹ، گرین، اس میں بھی مسئلہ آ رہے ہیں، ان کے بھی غلطیاں ہیں، اور ان لوگوں نے ہمیں اپنا وہ بھی نہیں دیا، ابھی تک اپنا جو پیپر تھا وہ ریلیز نہیں کیا گیا، تاکہ ہم لوگ ان کے کوشچن لکھیں کہ یہ کوشچن وہ تو معلوم ہے ہمیں، یہ تو ہمیں معلوم ہے
कि आउट ऑफ कोर्स थे, लेकिन ये हम लोग को पेपर नहीं दे रहे। माशाल्लाह उन एक्सपर्ट पर हो जो उन्होंने हमारे लिए पेपर बनाया था, जो अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं कि हम बायोलॉजी के एक्सपर्ट है, हम स्पेशलिस्ट है, हम आप लोगों की पेपर तैयार करेंगे, आप लोग बेगम हो जाओ। इन एक्सपर्ट पर लानत हो कि इनको इस सिलेबस का पता ही नहीं कि बायोलॉजी कौन सा चैप्टर है, केमिस्ट्री कौन सा चैप्टर है, फिजिक्स का कौन सा चैप्टर है। यहाँ हम लोग जलील होकर दिनों रात लाइब्रेरी में बैठते रहते हैं, एकेडमी जाते रहते हैं, यहाँ रिपीटर्स होते हैं, 4 से 5 साल बैठे रहते हैं, लेकिन ये इनके एक्सपर्ट की नालायकी की वजह से इनके एक्सपर्ट को पर लानत हो 10 बार कि एक सिलेबस पॉइंट आउट, ये एमसीक्यूज एक चैप्टर से पॉइंट आउट इतने कमजोर हैं कि मान लिया अपने सिलेबस से एमसीक्यूज ने सिलेबस को बढ़ा दिया। खैर है, हम लोग मान लेंगे स्टूडेंट है, जितना जुल्म करोगे हम लोग तो अब कानून के साथ तो चलेंगे, लेकिन फिर भी आउट ऑफ कोर्ट अभी हम लोगों की गुजारिश ये है कि हमारी 22 एमसीक्यूज 22 के 22 हमारे ग्रेस मार्क्स दिए जाए, या हमारा जो एग्रीगेट बन रहा है वो 200 के बजाय 178 से बना दे। हमारे जो टेस्ट है एग्रीगेट बने, 200 से नहीं बने। मेरे डिस्ट्रिक्ट वाले, हम सबके डिस्ट्रिक्ट वाले बाहर इस्लामाबाद गए हैं, उनको ग्रेस मार्क्स भी मिले गए, उनका पेपर भी इंटू द सिलेबस था, हम लोग का पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, यानी हम लोग का पेपर 178 एमसीक्यूज पर बने थे, तो हमारे एग्रीगेट 178 ही से बना दें, या हमारे टेस्ट वापस रिकंडक्ट करके हमारे अपनी सिलेबस ले आए। 8000 के लिए हम लोग ऐसा करेंगे, 8000 हम लोगों से सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी लिया, 8000 खुदा को मानो सीसीएस वाले भी 8000 नहीं देते, 8000, और 8000 में आपका सेंटर में पानी नहीं था, ये कौन से दिन। और अपनी रहने की वजह से अपने बलूचिस्तान के स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं, कब तक आप लोग वेट करेंगे, कब लोग, यही हमारे स्टेप है, यही हमारे आखिरी स्टेप है। हम लोगों ने बीच वाली उसको भी इन्फॉर्म किया, बोला मेडिकल वालों को, और यही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। थर्ड जो हमारी लास्ट रास्ता होगी वो हम लोग अदालत जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। पाकिस्तान में कानून है माशाल्लाह, कानून के साथ जाएंगे, कानून पे अपने केस करेंगे और अपना कानून अप्लाई करेंगे। हमें अपने मार्क्स चाहिए, 22 एमसीक्यूज 22 के 22 चाहिए, या 22 दे दो, या हमें टेस्ट रिकंडक्ट कर दो, या हमारी एग्रीगेट 178 से बना दो। ये 3 बात, इन सब को मदरजा लिखा जाए, हमारी इस स्टेप पर लिया जाए। खुदा लड़ा हम लोग सारे स्टूडेंट से, सारे गरीब स्टूडेंट से, सारे अपने गाँव से आए हुए एक डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन ये लोग ये करते रहते हैं हमारे साथ। ये नहीं है कि ये साल हुआ बस हम लोग बैठ जाए, 2021 से ये सिलसिला आता रहता है। रोडों पर हम लोग बैठे एहतजाज करते, पिछले साल भी ये मसला था, पिछले साल तो पता नहीं पेपर कहां से बनाया हुआ था, 21 में 22 में 23 में ये 24 आ गया, लोग कहां तक पहुंच गए। हम लोग वही मेडिकल एंट्री टेस्ट जब जाने के लिए वही पेपर आउट ऑफ कोर्स आ रहा है। इतने एक्सपर्ट्स हमारे बलूचिस्तान में नहीं है, हमारे पाकिस्तान में नहीं है, क्यों इतना कमजोर है। अगर इतना ज्यादा कमजोर है तो हमारे माशाल्लाह मेडिकल स्टूडेंट भी इतने काबिल है, 2-3 को उठा लो, उनको सीट दे दो, वो आप लोग को मेडिकल वो पेपर बना लेगा, इतने एक्सपर्ट अभी हो गए। ये जो सीनियर है एमडीकेट वाले, उनको उठा लो, वो इंशाल्लाह पेपर बना देगा और टू द सिलेबस भी बना देगा, और इतना कि लोग मुकाबला उसमें कर सकें। ये बताएं, बस ये हुआ है कि जैसे अभी दोस्त ने आपको कहा कि 2021 से बलूचिस्तान के तलबा के साथ, मेडिकल के तलबा के साथ हमेशा ये रवैया रखा जा रहा है। अभी कुछ 2 महीने पहले भी हमारे एहतजाज थे, हमने 6 मुतालिबात रखे थे कि हमें जैसे बुकलेट आज ही बोल रहे हैं कि इनको आज पता चला इनका टेस्ट 23 सितंबर को हुआ है, तो आज इनको पता चला है कि टेस्ट के अंदर क्या बेज़ाब्तियां हुई है। जो हम लोग बुकलेट की जो बात करते थे कि भाई बुकलेट प्रोवाइड करो, उस मुतालिबात में हमारा ये मुतालिबात था 2 महीने पहले, यही मेडिकल स्टूडेंट्स एहतजाज पे थे। तो उसके अलावा ये जो इस्लामाबाद में जो टेस्ट हुआ है, यानी इस्लामाबाद के अंदर बम्स जो टेस्ट कंडक्ट कर रहा है तमाम पाकिस्तान के तलबा को बुलाकर, वहां पे जो तलबा गया है जिसने टेस्ट दिया है उनको उन्होंने ग्रेस मार्क्स दे दिए हैं। और जो टेस्ट बलूचिस्तान में हुआ है, बलूचिस्तान के अंदर अगर टेस्ट के अंदर बेज़ाब्तियां तो ये है, जैसे अभी आप टाइम की बात नोट कर ले, यहाँ पे बलूचिस्तान को कितना सीरियस ये लोग लेते हैं। 10 बजे का टेस्ट 12:30 बजे शुरू हो रहा है, तो उसके अंदर कुछ दोस्तों ने मुझे भी कहा कि वहाँ पे सरेआम कुछ लड़के नकल कर रहे थे और उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा था। जो 25 जो नंबर है इसके लिए अब मेन बात समझने की ये है कि बलूचिस्तान के तलबा के यहाँ पे जो एमसीक्यूज गलत आए हैं, जो आउट ऑफ कोर्स आए हैं, उनका नंबर जो है वो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को नहीं मिलेंगे। इनको इस नंबर को लेने के लिए इनका ये टेस्ट यहाँ की बजाय उनको इस्लामाबाद देना पड़ता। तो ये एक सरासर आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि क्या बना रहे हैं ये लोग हमारे साथ। दूसरी बात ये है कि मैं खुद बजाते खुद पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से और इन दोस्तों के साथ बारहा बलूचिस्तान की हुकूमत के पास गया। आप लोग मीडिया वालों से ये दरख्वास्त है मेरी
बल्कि तमाम तलबा से दरख्वास्त है कि अब हम लोगों को इस मसलों को हल करने के लिए बड़ा एक सिंपल सा हल हम लोगों ने और ये निकाला है कि बलूचिस्तान को अपना मेडिकल कमीशन दिया जाए, जो कि हमारा कानूनी हक है, जो तमाम सूबों को मिला हुआ है, हमें क्यों नहीं मिल रहा। और उसके अलावा हमारी अपनी HSC, सूबाई HSC होनी चाहिए। आज जो ये मसले पैदा हो रहे हैं, आज जो बम्स की वजह से हमारे साथ जो एमडिकेट के जो मसले बन रहे हैं, या जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के साथ जो हमारे मसले बन रहे हैं, वो इन्हीं बुनियादों की वजह से कि हमारे और इनके दरमियान पे एक बहुत बड़ा फासला है, और वो फासला इल्मी लेवल पे भी है, वो फासला कम्युनिकेशन लेवल पर भी है, और वो फासला जो है ना हमारे मसाइल के लिए भी है। ये हमेशा हमारे मसाइल पे, बलूचिस्तान के तलबा के मसाइल पे ये लोग चूं भी नहीं करते हैं। और वहां पे अगर पंजाब की साइड पे कोई लड़के इसके ऊपर आवाज उठाते हैं तो ग्रेस मार्क्स, यानी अगर आप बहुत सिंपल से आप लोगों को बात समझ आ गई होगी कि भाई जो क्वेश्चंस गलत होते हैं उनके नंबर उनको मिल जाते हैं, मगर बलूचिस्तान के तलबा को उनके नंबर उनको नहीं मिल रहे हैं। अब मेरिट की बात अगर की जाए तो मेरिट को बराबर ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन खुद कहता है कि हम जो है ना मेरिट की बुनियाद पे हम लोग यहाँ पे सीट्स देंगे लोगों को, मगर यहाँ पे आप जाहिर सी बात है कि आप मेरिट, जब आपका टेस्ट ही वहां पे एक अलग किस्म का टेस्ट होगा, यहाँ पे एक अलग किस्म का टेस्ट होगा, तो मसाइल तो पैदा होंगे। और इसके अलावा हम बार यहाँ पिछले एहतजाजों में हमने कह चुके थे कि भाई बलूचिस्तान का जो कमीशन का टेस्ट होगा मेडिकल का, उसको बलूचिस्तान के सिलेबस से जोड़ा जाए, बलूचिस्तान के सिलेबस से बनाया जाए। हम थक गए, हमने 1 महीना एहतजाज किया, हम रोडों पे आए, हम तमाम मिनिस्टरों के पास गए कि खुदारा इस मसले को सीरियस लिया जाए। ये आज 12,000 13,000 लड़कों का मसला है, इन सब ने डॉक्टरी की ख्वाहिश रखी है, वो आते हैं, वो टेस्ट देते हैं। इनमें से बहुत से लड़के ऐसे हैं जिनका थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट है, यानी वो इतने ख्वाहिशमंद हैं, वो इतना ऊपर डॉक्टर बनने के लिए उनकी इतनी मेहनत है कि वो अगर आज वो उस टाइम पे उसको छोड़ देते, आज वो कोई और डिग्री कर लेते, उनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी होती, वो आज किसी डिग्री के मालिक होते, मगर उनकी जो ख्वाहिश है कि डॉक्टर बनेंगे, उसके लिए बार कोशिश कर देते हैं। मगर ये इदारों की तरफ से और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से हमेशा बलूचिस्तान के तलबा जो है ना किसी न किसी तरफ से इशू बनाया है। और एक आप मीडिया वालों को बेहतर तरीके से पता होगा कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि हम टेस्ट के बाद एहतजाज कर रहे हैं या टेस्ट से पहले एहतजाज कर रहे हैं। 2021 से ये हमारे साथ शुरू है कि हम टेस्ट से पहले भी एहतजाज करते हैं, इनको बताते हैं कि हमारे इन मसाइल को गौर फिक्र रखकर हमारे टेस्ट बनाया जाए, हमारे मसलों को सामने रखकर हमारे जो है ना हमें उस तरह से डील किया जाए। मगर ये हमारे बातों की बजाय फिर हम उसके बाद भी, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने एहतजाज किया, हम 1 महीने के लिए खामोश रहे, तलबा के कैरियर का मसला था ताकि ये स्टडीज अपनी कंप्लीट करे, टेस्ट की तैयारियां सही करे। आज ये टेस्ट की तैयारियां भी करके, ये सब कुछ ओके करके फिर भी टेस्ट के अंदर बेज़ाब्त किया। आखिर बलूचिस्तान का तलबा जाए तो किधर जाए? बलूचिस्तान के तलबा के पास अगर इस टाइम कोई हथियार है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप मीडिया वाले हैं। हमारी आवाज, मैं बजाते खुद अपनी तरफ से कहता हूं कि मैं सीएम बलूचिस्तान के पास गया, मीर सरफराज बुगटी साहब के पास गया, मैं हेल्थ मिनिस्टर के पास गया, मैं सीएम साहब के कोऑर्डिनेटरों के पास गया, और बाकायदा एक बिल बनाया मैंने। शायद मीडिया के काफी दोस्तों ने मुझे असेंबली में देखा होगा, मुझे सीएम हाउस में देखा होगा कि मैं उस बिलों को हाथ में रख के इनके पास जाता जा रहा था, सिर्फ आज इस मसले के लिए। ये 1 महीने से मैं लगा हुआ था कि यार खुदारा, जो हमारा कानूनी हक है 18वीं तरमीम के बाद, हमें अपना प्रोविजनल मेडिकल कमीशन बना के दे दो। वो बिल आज भी शायद असेंबलियों के उन टेबलों पे ऐवानों में पड़ा होगा, वो बिल आज भी तमाम एमपीएस के पास, मैंने हर एमपीए को बाय हैंड उसको दिया कि खुदारा हमारे लिए बात करें। आज अगर ये तलबा यहाँ पे बैठे हुए हैं, आखिर हम कब तक एहतजाजों पे अपना टाइम जाया करेंगे? बल्कि टाइम जाया नहीं, एहतजाज भी हमारा कानूनी हक है, और एहतजाज के टाइम पे भी हमें फिर इसी तरह पे रोड पे आके, आज हमारे लिए कोई नहीं आता, लेकिन जब हम रोड पे बैठते हैं तो हमें मनाने के लिए, हमें खुश करने के लिए, हमें उठाने के लिए सब आके मिन्नतें करते हैं। आज आप लोगों से दोबारा एक दरख्वास्त करता हूं कि 18वीं तरमीम के बाद हमें अपना सूबाई मेडिकल कमीशन और सूबाई HSC चाहिए। उन तमाम मसलों का हल सूबाई मेडिकल कमीशन है, ताकि हम पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की बदमाशियों से भी जान हमारी छूट जाए, उनके जुल्म से भी हमारी जान छूट जाए, और उनकी ये जो नारवा सलूक है हमारे साथ, जो एक 2 तरीके का अमल हमसे रख रहे हैं, पाकिस्तान के तलबा के साथ 2 तरीके का व्यवहार रख रहे हैं, हमें अलग तरह से गाइड किया जा रहा है और दीगर सूबों को अलग तरह से गाइड किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर। हमने बारया कहा कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को, उन्होंने हमारे खिलाफ लास्ट एहतजाजों में उन्होंने हमारे खिलाफ एक प्रेस रिलीज भी जारी की थी कि जो लड़का भी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के खिलाफ निकलेगा हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे।